حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا عجوبہ واقعہ پیش آیا جو کسی دوسرے نبی یا رسول کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 13 سال تھی، اس وقت بنی اسرائیل کے بادشاہ ان کے والد داؤد علیہ السلام ہی تھے۔ ایک دن داؤد علیہ السلام کی عدالت میں ایک ایسا مشکل اور پیچیدہ معاملہ آیا جس کا فیصلہ کرنے سے ہر کوئی گھبرا گیا۔ کوئی بھی اسے حل نہیں کر پا رہا تھا۔ معاملہ یہ تھا، ایک عورت پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ایک کتے کے ساتھ گناہ زنا میں پکڑی گئی ہے۔ پورا دربار سن رہ گیا۔ یہ الزام اتنا بھیانک تھا کہ فیصلہ دینا زبردست مشکل، لیکن یہیں 13 سال کا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنی حکمت اور عقل سے ایسا فیصلہ کیا کہ پوری بنی اسرائیل حیرت میں پڑ گئی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بے حد خوبصورت، روپ سی سہانی ایک عورت رہتی تھی۔ عمر شادی کی ہو چکی تھی، مگر وہ اب تک کنواری تھی۔ ہر دن قوم کے بگڑے ہوئے نوجوان اس کے گھر کے ارد گرد منڈراتے رہتے، اسے تنگ کرتے، شادی کا دباؤ ڈالتے، اور وہ عورت اس سے بے حد پریشان تھی۔ ایک دن وہ سیدھی چلی گئی حضرت داؤد علیہ السلام کے نیوکت کیے ہوئے ایک قاضی کے پاس۔ اس نے کہا، اے مہامانیہ قاضی، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن میری قوم کے کچھ لوگ مجھے روز تنگ کرتے ہیں، کرپیا میرے لیے کوئی انصاف کریے۔ لیکن جب قاضی نے اس عورت کا روپ، اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی دیکھی تو وہ خود موہ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک پیشکش دیتا ہوں، اگر تم میری یہ بات مان لو تو آج کے بعد کوئی مرد تمہارے آس پاس بھی نہیں پھٹکے گا۔ عورت نے حیرانی سے پوچھا، کون سی پیشکش؟ قاضی بولا، تم مجھ سے نکاح کر لو، جب تم قاضی کی بیوی بن جاؤ گی تو کوئی مرد تمہارے قریب آنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ عورت غصے سے بھر اٹھی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، سب ایک جیسے ہیں کیا؟ میں یہاں انصاف لینے آئی تھی اور آپ خود ہی مجھ پر نکاح کا دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو میں سیدھا بادشاہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں شکایت کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت محل کی طرف چل پڑی۔ ادھر قاضی گھبرایا۔ اس نے 4 جھوٹے گواہ جٹائے، انہیں پیسے دیے اور کہا، اس عورت کے خلاف جھوٹی گواہی دو۔ کچھ دیر بعد وہ عورت داؤد علیہ السلام کے محل میں پہنچی۔ اس نے پوری داستان سنائی اور بولی، اے بادشاہ، میں آپ کے نیوکت کیے ہوئے قاضی کے پاس گئی تھی، لیکن اس نے نہ تو انصاف دیا بلکہ الٹا مجھ سے نکاح کا ناجائز تقاضا کیا۔ یہ سن کر داؤد علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا، قاضی کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں فوج اسے گھسیٹ کر لے آئی۔ داؤد علیہ السلام گرج کر بولے، کیا یہ الزام سچ ہے؟ یہ عورت تمہارے پاس انصاف مانگنے گئی تھی، پھر تم نے صحیح فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ جب بادشاہ داؤد علیہ السلام نے قاضی سے پوچھا تو قاضی فوراً بولا، بہت صفائی، جھوٹی مضبوطی کے ساتھ، اے مہامانیہ بادشاہ، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ ہر روز کتے کے ساتھ گناہ کرتی ہے۔ اسی ناپاک حرکت کی وجہ سے آج تک اس کی شادی نہیں ہوئی۔ محل کا ماحول سن ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اس عورت کی طرف رخ کیا اور گمبھیر آواز میں پوچھا، تمہارے خلاف جو الزام لگائے گئے، کیا وہ سچ ہیں؟ عورت روتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، یہ سب جھوٹ ہے۔ قاضی خود غلط ہے، میں بے قصور ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی ایسا ناپاک کام نہیں کیا۔ لیکن قاضی نے ترنت کہا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی بات کے حق میں 4 گواہ پیش کر سکتا ہوں۔ اور تھوڑی ہی دیر میں وہ 4 گواہ حاضر کر دیے گئے، جنہیں قاضی پہلے ہی پیسے دے کر خرید چکا تھا۔ 4 نے ایک ساتھ جھوٹی گواہی دی، اے بادشاہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ عورت کتے کے ساتھ گناہ کرتی ہے، ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ان 4 گواہوں کی بات سن کر داؤد علیہ السلام، جو قانون کے مطابق فیصلے کرتے، انہوں نے سخت حکم سنا دیا، اس عورت کو کمر تک زمین میں گاڑ کر اس پر پتھروں کی بوچھار کی جائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ فوج کے سپاہی اس بیچاری عورت کو گھسیٹتے ہوئے ریگستان کی اور لے جا رہے تھے۔ اسی وقت بھیڑ میں سے ایک بزرگ عورت چلائی، یہ عورت تو بہت دیندار ہے، پرہیزگار ہے، کیا یہ اتنا گرا ہوا کام کر سکتی ہے؟ یہ الزام ہمیں ماننے لائق نہیں لگتا۔ یہ بات 13 سال کے نوجوان سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں بھی گئی۔ وہ بچپن سے ہی حکمت والے، سمجھدار اور اللہ کی طرف سے خاص دی ہوئی عقل رکھنے والے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا
इस फैसले में कोई न कोई रहस्य है। ये फैसला अधूरा है और ये औरत मुझे बेकसूर लगती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने वालिद से बोले, ए अब्बा जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये मामला दोबारा देखना चाहता हूँ। मेरी समझ कहती है कि अभी इस फैसले की असल हकीकत सामने नहीं आई। दाऊद अलैहिस्सलाम, जो अपने 19 बेटों में से सुलेमान को सबसे ज़्यादा चाहते थे, उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, ए सुलेमान, अगर तुम नया फैसला कर सको तो ये हम सब के लिए बेहतर होगा। यूं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोबारा उस औरत को बुलाया और झूठी गवाही देने वाले चारों गवाहों को भी हाजिर कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खूबसूरत औरत से पूछा, क्या तुम वाकई किसी कुत्ते के साथ ऐसा गंदा और नफरत अंगेज काम करती थी? वो खूबसूरत औरत रोती हुई आवाज में बोली, ए मने इज्जत शाहजादा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ऐसा नीच काम कभी कर ही नहीं सकती। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन चारों गवाहों को अलग अलग कमरों में ले जाकर उनसे पूछताछ शुरू की। गुस्से पर काबू रखते हुए लेकिन सख्त लहजे में पूछा, बताओ, जिस कुत्ते के साथ तुम कहते हो कि ये औरत गुनाह कर रही थी, उस कुत्ते का रंग क्या था? क्योंकि हर एक गवाह को अलग कमरे में पूछताछ की जा रही थी, चारों ने 4 अलग अलग रंग बता दिए। यही बात साफ कर देने के लिए काफी थी कि चारों गवाह झूठे थे। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अब्बा जान, ये चारों गवाह पैसे के लालच में बिक गए हैं, इन्होंने झूठी गवाही दी है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आदर के साथ लेकिन पुख्ता अंदाज में कहा, अब्बा जान, मैंने इन्हें अलग अलग कमरों में ले जाकर एक ही सवाल किया। अगर ये सचमुच इस औरत को गुनाह करते हुए देखते तो सब एक जैसा जवाब देते, लेकिन हर एक ने अलग रंग बताया। यही साबित करता है कि औरत मासूम है और ये गवाह झूठे हैं। ये सुनकर दाऊद अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से में आ गए। सच सच बताओ, तुमने झूठी गवाही क्यों दी? अगर अब भी झूठ बोलोगे तो मैं तुम चारों को सख्त सजा दूंगा। चारों गवाह डर के मारे कांपने लगे, उनकी आवाज थरथरा रही थी। ए बादशाह आलम, हमने झूठी गवाही दी है। हमें इस काजी ने पैसे का लालच देकर मजबूर किया था। ये औरत बिल्कुल बेगुनाह है, वो ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने फौरन फैसला सुनाया। काजी और चारों झूठे गवाहों को उनकी झूठी गवाही की मुनासिब और सख्त सजा दी गई और ये पूरा मामला सही और इंसाफ के साथ सिर्फ और सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत की बदौलत पूरा हुआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गहरी समझ, दानाई और हिकमत दी थी। प्यारे दोस्तों, जब भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किसी सफर पर जाते तो वो अंदरूनी महल का दरवाजा बाहर से बंद करके जाते और अंदर उनकी बीवियां रहती। एक दिन वही हुआ। दाऊद अलैहिस्सलाम दरवाजा बाहर से बंद करके सफर पर चले गए। अचानक अंदरूनी महल में उन बीवी ने देखा, अरे यहां एक शख्स खड़ा है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और अंदर आए कैसे? बाहर से तो दरवाजा बंद था। फौरन बाहर निकल जाइए, वरना दाऊद लौट आए तो बहुत नाराज होंगे। लेकिन वो शख्स चुप, बिल्कुल चुप, कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद दाऊद अलैहिस्सलाम वापस आए, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। बीवी ने फौरन कहा, आज एक अजनबी अंदर आ गया था। मैंने बहुत पूछा मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास गए और बोले, तुम कौन हो? अंदर आए कैसे? चारों तरफ दरवाजे खिड़कियां तो बंद थीं, फिर भी तुम यहां कैसे पहुंचे? तब उस शख्स ने पहली बार बोला, दुनिया का कोई दरवाजा, कोई दीवार मुझे रोक नहीं सकती और कहीं पहुंचने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं होती। दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए, तुम मलाकुल मौत आज़राइल हो। आज़राइल अलैहिस्सलाम बोले, हाँ ए अल्लाह के नबी, आपका वक्त पूरा हो चुका है, मुझे आपके रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई आज़राइल, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैं बस 2 रकत नमाज अदा करना चाहता हूं। मलाकुल मौत ने जवाब दिया, मोहलत? तय वक्त से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं मिल सकता। अगर तुम वक्त पूरा होने से पहले नमाज पढ़ सको तो पढ़ लो। दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन वुजू करके नमाज में खड़े हो गए और जब वो सजदे में गए उसी वक्त उनका वक्त मुकम्मल हो गया। मलाकुल मौत ने सजदा की हालत में ही उनकी रूह कब्ज कर ली और फिर वहां से चले गए।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की पूरी कौम पर गम का साया छा गया, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसाफ, सच्चाई और अल्लाह के कानून के साथ इस कौम की रहनुमाई की थी। बनी इसराइल ने अपने हमदर्द रहनुमा को खो दिया, अपने महान बादशाह को खो दिया, अपने प्यारे नबी को खो दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के जनाजे में सिर्फ बनी इसराइल के आलिम ही 4000 थे। जब उनका जनाजा एक बड़े मैदान में लेकर जाया गया, उसी वक्त सूरज की तपिश अचानक बेहद शदीद हो गई। इतनी गर्मी, इतना तपा हुआ सूरज कि लोगों के लिए जनाजे के मैदान में ठहरना ही नामुमकिन हो गया था। भीड़ ने छांव ढूंढनी चाही, लेकिन कोई जगह नहीं। सब के सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, ए अल्लाह के नबी, हम आपके वालिद के जनाजे में इस कदर तेज धूप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, कृपया कोई इंतजाम कीजिए, वरना हम इस मैदान में टिक नहीं पाएंगे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अभी अभी नबी बने थे, उनके वालिद की वफात को बस कुछ ही दिन हुए थे और आज उनकी कौम उनसे मदद मांग रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पहले मुअज्जिज़ा का इजहार किया ताकि बनी इसराइल इस तेज धूप से बच सकें। असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम बचपन से ही बेहद हिकमत वाले, बुद्धिमान और अक्लमंद शख्स थे। बनी इसराइल का हर इंसान उनकी समझदारी की तारीफ करता था। बनी इसराइल के लोग पहले से ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अक्लमंदी से वाकिफ थे, इसलिए बहुत से लोग उनके पास आकर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, आपके वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जनाजे में लाखों लोग जमा हुए हैं, लेकिन धूप इतनी तेज है कि कोई मैदान में ठहर भी नहीं पा रहा। आप तो हिकमत वाले शहजादे हैं, या तो अल्लाह से दुआ कीजिए या अपना कोई मौजज़ा जाहिर कर दीजिए ताकि हम अपने प्यारे नबी का जनाजा खूबसूरती और सुकून से अदा कर सकें। उस दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ा दिखाया, वही उनकी नबूवत का सबसे पहला मौजज़ा था। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ इंसानों ही का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। 18,000 मखलूक़ात, हर एक सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और पंछियों को पुकारा, ए परिंदो, बनी इसराइल को इस तेज धूप से बचाने के लिए उन पर साया कर लो। बस उनके हुक्म का सहन करना किसके बस की बात थी। पल भर में करोड़ों परिंदे जमा हो गए, उन्होंने अपने पर फैला लिए, ऐसे जैसे किसी ने आसमान पर एक बड़ा सा तंबू खड़ा कर दिया हो। सबसे ज्यादा मेहनतबाज कर रहे थे, वे बिल्कुल ऊपर मंडराते हुए गहरा साया कर रहे थे। धूप अंदर घुसी नहीं पा रही थी, बल्कि साया इतना गहरा हो गया कि हवा का चलना भी रुक गया। जब हवा बंद हुई, कुछ बनी इसराइल फिर अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, साया तो मिल गया, मगर हवा बंद हो गई है, दम घुट रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, ठीक है, जिस तरफ से हवा आती है तुम परिंदे वहां से हट जाओ ताकि हवा फिर से मैदान में दाखिल हो सके। बस हुक्म दिया और परिंदों ने फौरन आज्ञा मान ली। हवा दोबारा चलने लगी और मैदान में ठंडक और सुकून फैल गया। इस तरह लाखों बनी इसराइल वालों ने बेहद खूबसूरती और एहतराम के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जनाजा अदा किया। जनाजे के बाद लोग आपस में कहने लगे, अल्लाह ने हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा हकीम, रहमदिल और काबिल हाकिम बख्शा है, क्या ही बड़ी नेमत है।